ناظرین آداب، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں فیاض احمد فیاض۔ پہلے سرخیاں۔ وزیر اعظم نے آج فٹنس موومنٹ کے 1 سال مکمل ہونے پر کئی کھلاڑیوں سے کی بات چیت۔ مچھا ترال میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئی جھڑپ، 1 ملیٹنٹ ہلاک۔ اسپتالوں میں آکسیجن کی بہتر سپلائی اور مریضوں کو ہر قسم کی سہولیات دستیاب رکھنے کی صحت و طبی تعلیم کے فائنینشیل کمشنر اٹل ڈلو کے افسران کو تلقین۔ اور جموں کشمیر سے آج کورونا کے 1104 نئے معاملات کی تصدیق۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک گیر آن لائن فٹ انڈیا ڈائیلاگ کے دوران تندرست اور چاق و چوبند رہنے کی ترغیب دینے والے افراد اور شہریوں سے گفتگو کی۔ فٹ انڈیا تحریک کا 1 سال مکمل ہونے کے موقع پر اس ڈائیلاگ کا اہتمام کیا گیا۔ چاق و چوبند رہنے اور اچھی صحت کے بارے میں وزیر اعظم کی نظریات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آن لائن تبادلہ خیال میں شرکاء نے خود کے فٹنس کے سفر کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے فٹ انڈیا سے متعلق فٹنس پروٹوکولز کا بھی آغاز کیا۔ وزیر اعظم نے کشمیر کی خاتون فٹ بالر افشاں عاشق کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ان سے فٹنس کے حوالے سے گفت و شنید کی۔ جموں کشمیر خواتین فٹ بال ٹیم میں بحیثیت گول کیپر کھیلنے والی 25 سالہ افشاں عاشق نے انڈین ویمنز فٹ بال لیگ 2019 میں کولہاپور کی طرف سے کھیلا تھا۔ وہ سری نگر میں لڑکیوں کو فٹ بال کی تربیت بھی فراہم کر رہی ہے۔ لائک اے بیکہم، لیکن مجھے بھروسہ ہے کہ اب وہ کہیں گے ایز اٹ لائک اے افسان۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ مجھے یہاں پہ اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے گھر والوں نے مجھے سپورٹ نہیں کیا تھا تب میں نے وہ ڈیسیجن لیا کہ نہیں، مجھے تھوڑا بہت اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے سوسائٹی کے ساتھ اسٹرگل کر کے اس چیز کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہماری سوسائٹی میں بھی تھوڑا چینج آئے۔ وہ لڑکیوں کو آگے دیکھنا چاہیے جو آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر کی خواتین فٹ بال ٹیم کی کپتان افشاں عاشق نے لیفٹنٹ گورنر کے مشیر فاروق خان سے ملاقات کی اور جموں کشمیر میں کھیل سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے کے حوالے سے کئی معاملات پر بات چیت کی۔ جموں کشمیر میں آج کورونا وائرس کے 1104 معاملات کی تصدیق ہوئی، جن میں سے 624 کا تعلق جموں سے اور 480 کا تعلق کشمیر صوبے سے ہے۔ اس طرح آج سامنے آئے معاملات کے بعد جموں کشمیر میں متاثرین کی کل تعداد 68,614 ہو گئی ہے۔ اس دوران پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے 22 مریض فوت ہوئے ہیں۔ صحت و طبی تعلیم کے فائنینشیل کمشنر اٹل ڈلو نے آج اسپتالوں میں دستیاب طبی سہولیات کا جائزہ لینے کی غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ اسپتالوں میں آکسیجن سپلائی کی سہولت اور وینٹیلیٹرز کے علاوہ مریضوں کے لیے بستروں کی دستیابی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے ان افسران سے تاکید کی کہ وہ کسی بھی طرح کی لاپرواہی کی گنجائش نہ رکھیں۔ موصوف نے مذکورہ اسٹاف کی کوتاہیوں کی وجہ سے کئی اموات کا سنگین نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ ایسا دوبارہ ہونے کی صورت میں ملوثین کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس سے پہلے انتظامیہ نے اس طرح کی کوتاہی کے مرتکب گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں کے ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو سسپینڈ کیا ہے۔ اسپتالوں میں آکسیجن کی قلت کی شکایات موصول ہونے کے بعد انتظامیہ نے 3 رکنی پینل قائم کی ہے جو ان شکایات کی چھان بین کے بعد کارروائی کی سفارش کرے گی اور آکسیجن کی درکار سپلائی کے حوالے سے بھی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس دوران سکمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر اے جی ہنگر نے آج آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت انسٹیٹیوٹ میں دی جانے والی سہولیات کا ایک میٹنگ میں جائزہ لیا۔ ڈائریکٹر موصوف نے آیوشمان بھارت پروگرام کے لیے اسپتال ایڈمنسٹریشن کے ہیڈ ڈاکٹر غلام حسن اتو کو نوڈل آفیسر مقرر کیا ہے۔ لیفٹنٹ گورنر کے مشیر فاروق خان نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے ہر سطح پر عوام کی شکایات اور مشکلات کا ازالہ کرنے کے لیے ثمر آور طریقہ کار اپنایا ہوا ہے۔ مشیر موصوف نے آج سری نگر میں عوامی وفود سے ملاقات کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو موجودہ یوٹی انتظامیہ سے کافی توقعات ہیں، اس لیے سرکار نے لوگوں کو سہولیات بہم رکھنے کا عزم کیا ہوا ہے۔ مشیر موصوف سے آج سینکڑوں افراد نے ملاقات کی۔ دریاستہ مشیر موصوف نے آج زیارت حضرت امیر سید یعقوب صاحب سنوار کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ وقف بورڈ کے کئی اہلکار بھی تھے۔ دورے کے دوران انہوں نے زیارت پر زائرین کے لیے دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ زیارت پر زائرین کے لیے ہر قسم کی سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ بعد میں مشیر موصوف نے چشمہ شاہی میں واقع زیارت حضرت قاسم شاہ اور عاصم شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر حاضری دی۔ صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے نے آج زڈموڑ اور زوجیلا ٹنل پر جاری کام کا ایک میٹنگ کے دوران جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں تمام ترقیاتی پروجیکٹوں پر سرعت سے کام جاری ہے اور انہیں مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے گا۔ انہوں نے گاندربل اور کرگل اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں کو ہدایت دی کہ ان ٹنلوں پر کام کر رہی ایجنسیوں کو وہ بھرپور تعاون فراہم کریں۔
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन MSME वजारत की हिदायत पर गांधी जयंती से पहले कश्मीर से वाबस्ता करीब 500 दस्तकारों को तरबियत फराहम करेगा। ये तरबियत कश्मीर की रिवायती दस्तकारियों से मुत्तलिक होगी और इस हवाले से KVIC के ट्रेनिंग सेंटर PMTC में 12 ऐसी मुख्तलिफ दस्तकारियों के हवाले से तरबियत शुरू की गई है। डायरेक्टर KVIC जम्मू कश्मीर SP खंडेलवाल ने कहा कि इन दस्तकारों को तरबियत के बाद PMEGP के तहत 35% सब्सिडी के साथ माली मुआवनत फराहम की जाएगी। 150वीं गांधी जयंती के सिलसिले में साल भर जारी रहने वाले प्रोग्रामों के इख्तिताम पर आज मीडिया कॉम्प्लेक्स जम्मू में रीजनल आउटरीच ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और महकमे इत्तलात आमा के बाहमी इश्तराक से 2 रोज़ा फोटो नुमाइश का एहतमाम किया गया। अभी इत्तला मिली है कि श्रीनगर के हवल एरिया में मिलिटेंटों ने नौजवान वकील बाबर कादरी पर गोलियां चलाईं, जिससे वो जख्मी हुआ। उसे जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। जिला बडगाम के दालवाश गांव में खाग के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन भूपिंदर सिंह को गुज़श्ता रात नामालूम बंदूक बरदारों ने घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया है। बताया जाता है कि भूपिंदर सिंह पुलिस स्टेशन खाग में 2 पुलिस मुहाफिजों को छोड़ देने के बाद घर लौट रहे थे। जो ही भूपिंदर सिंह अपने घर के करीब पहुंच गए तो वहां छुपे मिलिटेंट बंदूक बरदारों ने उन पर गोलियां चलाई और वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। भूपिंदर सिंह मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को मुहासे में लिया और मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। भूपिंदर सिंह की इस वहशाना हलाकत की कई सियासी और समाजी तंजीमों ने मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि इस हलाकत का मकसद लोगों में खौफ हिरास पैदा करना और अमन अमान की फ़ज़ा को दरम बरम करना है। उन्होंने कहा कि इन हलाकतों की कोई जवाजियत नहीं है। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी कार्रवाइयाँ करने वाले अफराद के लिए कोई जगह नहीं है और बहुत जल्द ऐसी हरकत के मुर्तकिब अफराद को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। LG ने सोरगिया के अहल खाना के साथ तज़ियत करके उनके साथ हमदर्दी जाहिर की। PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हाजुरा की सदारत में एक तज़ियती मीटिंग में BDC भूपिंदर सिंह को खराज अकीदत पेश करते हुए उसकी हलाकत की शदीद मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद ने भी खाग बडगाम के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन भूपिंदर सिंह की हलाकत पर दुख और सदमे का इजहार किया है। PDF के हकीम मोहम्मद यासीन ने भी इस हलाकत की मजम्मत की है। सराई बड़ीपोरा चाडूरा इलाके में आईएसओ मिलिटेंटों ने घात लगाकर हमला करके CRPF के एक ASI को गोली मारकर हलाक कर दिया। मिलिटेंटों ने पहले ग्रेनेड दागा, उसके बाद फायरिंग की, जिससे नाके पर मौजूद ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हुआ। ASI को जख्मी हालत में नज़दीकी अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। इस दौरान आज RTC हुमामा में एक तकरीब के दौरान महलूक CRPF एहलकार को खराज पेश किया गया। तकरीब के दौरान उनके शव पर फूल चढ़ाए गए। मशामात्राल में आईएसओ फौज और मिलिटेंटों के बीच एक झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया। इससे पहले फौज को मुतल्लिका इलाके में मिलिटेंट के छुपे होने की मुसद्दिक इत्तला मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने इस इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। जिस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। फौज ने कार्रवाई करके मज़कूरा मिलिटेंट को मार गिराया। मिलिटेंट की शनाख्त की जा रही है। इस दौरान इत्तला मिली है कि सिरहामा अनंतनाग में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है, जो इस वक्त जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कपवाड़ा के थाइन कलारूस इलाके में आज सुबह उस वक्त एक नौजवान जाँ बहक जबकि 2 दीगर जख्मी हुए जब एक ट्रैक्टर कलवर्ट से फिसल कर एक गहरी खाई में जा गिरा। मारे गए नौजवान की शनाख्त थाइन कलारूस के फारूक अहमद मीर के तौर हुई है, जबकि इसमें मंजूर अहमद डार और बशीर अहमद मीर नामी 2 अफराद जख्मी हुए हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज जिला पुलवामा के पांपोर कस्बे के बागिंदर इलाके में तजमुल मसूदी और मुसद्दिक मसूदी के घरों पर छापे मारे। इस दौरान मज़कूर अफराद के घरों की तलाशी ली गई और तमाम असनाद चेक किए गए। वाज़ेह रही कि तजमुल मसूदी को तकरीबन 3 साल कबल LOC ट्रेड के दौरान एक ट्रक से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसको हिरासत में रखा गया था। जन अभियान प्रोग्राम के सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला डॉक्टर GN इत्तू ने दिन भर जारी रहने वाले एक अवामी दरबार का इनकाद किया, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों के लोगों, BDC चेयरपर्सन और पंचायती राज इदारों के मेंबरान ने शिरकत की। इस दरबार के दौरान मुख्तलिफ मामलात DC मौसूफ की नोटिस में लाए गए। डॉक्टर इत्तू ने लोगों के मुतालबात गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी जायज़ मुतालबात को मुत्तलिक अहदेदारों के साथ उठाकर जल्द पूरा किया जाएगा। दरियासना जिला तरक्याती कमिश्नर ने तिलगाम में JK बैंक का एक ATM कायम किए जाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कई इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी तलबा में तकसीम की।
उधर जिला इंतजामिया अनंतनाग की तरफ से भी जन अभियान मुहिम के तहत एक्स सर्विसमैन और जिस्मानी तौर खास लोगों के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की और अपने मुतालबात सामने रखे। जिला तरक्याती कमिश्नर ने उनकी मांगें और मुतालबात गौर से सुने और कुछ मामलात को मौके पर ही हल करने की हिदायत दी। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर अल्ताफ एजाज अंद्राबी ने आज कश्मीर डिवीजन के चीफ एग्रीकल्चर अफसरान के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग तलब की। मीटिंग में फसलों की मौजूदा सूरत हाल और मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर यूटी के बालाई इलाकों में मगजबानी को फरोग देने के लिए एक प्रोजेक्ट के मंजूर किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने चीफ एग्रीकल्चर अफसरान को तरजीहात की निशानदेही करके इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने के लिए तैयार रहने को कहा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग और मार्केटिंग ने आज दीगर अफसरान के हमरा जिला गांधरबल में जजना फ्रूट मंडी का दौरा करके वहां फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के साथ बात की। डायरेक्टर मौसूफ ने बातचीत के दौरान उनके मसाइल मुश्किलात गौर से सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग सियासी बयानात देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयानात हकीकत से बाईद हैं। खानकाह मौला श्रीनगर में आज 6 सफर मुजफ्फर की मुनासबत से एक रूह परवर मजलिस मुनक्किद हुई, जिसमें तौबा इस्तगफार के अलावा आलमगीर वबा से नजात के लिए भी खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। नमाज ज़ोहर के बाद खत्मतुल मौज़ूमात और दुरूद व अज़कार की मजलिस भी मुनक्किद हुई। मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने इस मौके पर कुरान और हदीस की रूह से मुख्तलिफ दुआएं पढ़ने की तलकीन की। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के मायनाज खिलाड़ी सुरेश रैना ने कुंजर क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। उन्होंने मकामी नौजवानों के साथ तबादुल ख्याल करने के दौरान उनको खेलकूद खासकर क्रिकेट के मैदान में तरबियत देने और मदद करने की यकीन दहानी की। रैना ने यहाँ स्पोर्ट्स के लिए बुनियादी ढांचा बेहतर बनाने की बात भी कही। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस, गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 23 डिग्री सेल्सियस। उधर मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।